हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ है चंद्रेश सर और पार्थ सर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक डिबेटेबल टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। डू रोहित एंड विराट फिट द T20 सर्किट? तो अभी इंडिया और अफगानिस्तान की ये 3 पार्ट T20 सीरीज जस्ट खत्म हुई है एंड इसके बाद इंडिया कोई भी T20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलने वाला है। The IPL is the only T20 format cricket that we will see Indian players playing. So where does this whole discussion stand at this point of time? आप मुझसे पूछ रहे हैं इनसे? आपसे मेरे हिसाब से वो आपने जो चैप्टर क्लोज कर दिया था, जो किताब बंद कर दिया था आपने नवंबर 2022 में, आपको फिर से खोलना नहीं चाहिए था। और ये बिना मतलब का फिजूल का ये किताब फिर से खुला है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला था उनको वापस लेके आने का, ये गलत फैसला था, क्योंकि उसकी वजह से ये हो रहा है कि दो यंगर प्लेयर्स जिस पर आपने इन्वेस्ट किया था पिछले 1.5 साल में, वो कोई भी हो, नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मुझे लगता है उनकी जगह चली गई है। ये एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है और 2007 से हम देखते आ रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं आ रहा है। मतलब आप पार्थ जो एक नामी गिरामी बिजनेसमैन है और इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता ये बात कि आप अगर एक फेल्ड स्टॉक पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसका रिटर्न नहीं आ रहा तो मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया था, आपको आगे बढ़ना चाहिए। I have a feeling Parth sir would disagree with this. No, I definitely disagree because there was a time when we had a good period of time where we could actually create a squad based on what we wanted a team to participate in a particular tournament. If you go by the 2011 World Cup, Dhoni had a clear mindset of what kind of players he wanted for the World Cup, which he tried to put that in for 2 years and then took them to the World Cup. But now if you see, because of the kind of tournaments that are happening around, the number of ICC tournaments, you have one every year till the cycle that we know, that is till 2031. So there we haven't been able to actually understand what team is right for which tournament. And that is where players like Virat Kohli and Rohit Sharma need to be in the scheme of things, because they are the ones that are actually holding your squad. What has happened is that we have tried to bring in more players, we have seen them and given them enough chances. But when you look at the performances, we are not able to say that, okay, these are the players that are actually going to be our top 11. And then if you try to compare that with what Rohit Sharma and Virat Kohli have done, I think they are the ones who are going to take this team ahead. And if you bring in more youngsters, you still need to have these two guys who are there to build that team, because their experience, their values, their inputs to the youngsters, that is eventually going to help the young team to actually build and be the team that we want to win the World Cup. So I think they still should be a part of the squad. उन्होंने बात की चंद्रेश सर, और ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, रोहित शर्मा को स्क्वाड में वापस लाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि एक कैप्टन की कमी इंडिया की T20 टीम को महसूस हो रही थी। सूर्य कुमार यादव की इंजरी, हार्दिक पांड्या की इंजरी, वी नो दे वोंट बी प्लेइंग एटलीस्ट अंटिल अप टू द IPL। तो इस They will definitely play the IPL. Yeah, they will definitely. एक टांग पे भी आके खेलेंगे IPL, वो भूल जाएगी। So for that reason रोहित शर्मा को हमने स्क्वाड में देखा to take up that captaincy role. But अभी अगर आप कह रहे हो कि रोहित शर्मा should be left out of the squad, who do you see as that leader role in the T20 squad for India? मतलब देखिए, आप जो ये सीरीज खेल रहे थे, आप जो है किसी और खिलाड़ी को भी आप रोल दे सकते थे। अगर आप चाहते थे कि आप पिछले 1.5 साल में आपने शुभमन गिल में इन्वेस्ट किया है, आप कहते हैं कि आप कप्तानी कीजिए, और ये कोई बड़ा एशिया कप या वर्ल्ड कप या ये तो नहीं था ना, ये तो एक बायलैटरल सीरीज ही था। पिछले 3-4 साल में हमने क्या देखा है? अब बायलैटरल वाइट बॉल क्रिकेट को आप अपना एक प्लेग्राउंड जैसा इस्तेमाल कर रहे हो कि सबको आप मौका दे रहे हो। तो ये कौन सी बड़ी आफत आ जाती है अगर शुभमन गिल या कोई और कप्तानी कर लेता। और ये बायलैटरल भूलने लायक बायलैटरल सीरीज था। अब 2 दिन बाद पूछिए 5 से, वो बता नहीं पाएंगे क्या था सीरीज का, कौन अच्छा परफॉर्म किया। अब याद होगा क्योंकि उनके एरिया का लड़का है जो मैन ऑफ द सीरीज था, पर 2 दिन बाद याद नहीं होगा फिर उनको। तो ये मुझे लगता है ये व्यर्थ है, और ये कह रहे हैं कि कप्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए था, और ये वो सब। हार्दिक पांड्या को आपने कप्तान बनाया था ना नवंबर 2022 में, आपने उनको मौका दिया था ना,
और चलिए वो इंजर्ड हो गए, आपको पता था ना, उसके बाद ही तो आपने कप्तानी करने दिया उनको। तो गलती मतलब जो आपने एक फैसला ले लिया था आपको उस पर अडिग रहना चाहिए था। और ये बात कि वो यंगर प्लेयर्स को टिप्स देंगे और ये देंगे और वो देंगे, मुझे लगता है कि ये एक फिजूल सी बात है। क्योंकि जब आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड कोचिंग स्टाफ है, जैसे राहुल द्रविड़ है, विक्रम राठौर है, पारस मामरे है, वो भी तो है ना, वो भी तो एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, आईपीएल इतना खेलने लड़के, उनको तो पता ही है T20 कैसा खेलना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 ये सब टूर्नामेंट में हम फेल हुए, या विराट या रोहित रहे, कोई रिटर्न आया नहीं है। आगे देखने का वक्त आ गया है हमने। और अब स्क्वाड की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है जहाँ इंडिया की गलती होती है T20 में ज़्यादा, वनडे क्रिकेट में कम, कि आपके बल्लेबाज जो है वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, गेंदबाज जो है बल्लेबाजी नहीं करते हैं। तो आपकी एक इम्बैलेंस स्क्वाड है। आपने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में आपके पास 5 गेंदबाज के आगे कोई ऑप्शन नहीं था। कोई गांगुली नहीं, कोई तेंदुलकर नहीं, कोई पठान नहीं, कोई रायना नहीं, कोई युवराज नहीं जो आके कुछ चमत्कार कर सके, कुछ नहीं था आपके पास। आपके पास बैलेंस ही नहीं है आपके स्क्वाड में, तो आप जीत ही नहीं सकते कोई वाइट बॉल टूर्नामेंट जब तक आप बैलेंस नहीं है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती T20 क्रिकेट में भारत नहीं करता है, बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को खिलाता है जो सिर्फ एक चीज करते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। सहमत है? I'm not completely agreeing to what he's saying. What has happened is that because the point here is that we haven't got that enough time, even for Rahul Dravid, when we talk about these people who are actually the ones who are taking these calls, even they for a point of time are actually relying on players like Rohit Sharma and Virat Kohli. Because even they feel that these youngsters, I'm not saying that they are not capable of doing that, but because they are so new to this entire atmosphere, they have played IPL, they have played those high pressure games and all, but ICC tournaments are very different. If you talk about Virat Kohli, he is the man of ICC tournaments. He is the highest run getter for us in knockout games. 10 साल में जीता क्या है आपने? पर एटलीस्ट वो वहाँ, अगर वो नहीं होता तो हमारे उतने भी रन्स नहीं बन रहे। रन्स का फायदा क्या, जीता कहाँ टूर्नामेंट? पॉइंट हियर इज दैट सिर्फ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की वजह से तो नहीं हार रहे ना। आपका एक पॉइंट 100% राइट था कि हमारे टीम में हम लोग बहुत स्पेशलिस्ट लोग खिलाने जाते हैं। वो पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ that is something that we need to change. Now players like Shivam Dube, again he bats very well, but उनका जब bowling आता है तो वो अभी भी बोल रहे हैं that we need him to improve his bowling, then he can be at that role what Hardik Pandya does. But again वो अभी भी स्पेशलिस्ट ही खिला रहे हैं कि वो एक अच्छा बैट्समैन है जो लंबे लंबे छक्के मार सकता है। But when you talk about particularly Rohit Sharma and Virat Kohli, with Virat Kohli what we have seen is that he bats through the situation. And in the current squad, we do not have any player who knows how to bat with a particular situation. We saw that in Australia against the game versus Pakistan. We बस करो यार, कितने बार वही मैच के बाद। नहीं, बट अगर आप वो मैच का बात नहीं करते तो आप मोहाली का मैच ले लो, जब ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने खेला था, जो सिचुएशंस उन्होंने खेले थे और जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक T20 में अगर कोई प्लेयर आज सोचता है कि मेरे को T20 खेलना है, the first thing that they have in mind is मैं सिर्फ छक्के मार के गेम जिता सकता हूँ। And Virat Kohli is the only guy who still tells them कि no boss, मैं तुमको दिखाता हूँ कि गेम कैसे जीता जाता है। एंड अगर तुम उस बेसिस पे तुम ये बोल रहे हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा स्क्वाड में नहीं बैठ रहे, तो शायद हम एटलीस्ट जो क्वालिफाई कर रहे हैं नॉकआउट्स के लिए, हम शायद वो भी ना करें। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि हमें इन दोनों को निकाल के करना है कि क्या करना है। हमें ये सोचना है कि ये दोनों को स्क्वाड में रख के हम बाकी ऐसे कौन से प्लेयर्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि तुम जाके फ्रीली एक्सप्रेस करो खुद को। And when it comes to Rohit Sharma also, what he has done is he has taken up that role. We saw that in the 50-over World Cup that he told everyone that I am going to take that responsibility of freely expressing myself. And he put that team first before getting those personal milestones. I don't want to talk about the finals, but we all know what he did. The intent was right there. And I think that intent is what we need. And again, the players that we want to keep around Rohit Sharma and Virat Kohli are the ones that we should be debating about, and definitely not about Rohit Sharma and Virat Kohli. मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम जो है we are mixing up formats. ODI वर्ल्ड कप में जो हुआ, रोहित शर्मा ने जबरदस्त किया,
पर वो ओडीआई के लिए ठीक है। अब मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट में आई थिंक द टाइम हैड कम फॉर अस टू चेंज एंड वी हैड चेंज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक प्रेशर में आके हम पीछे देखने लगे हैं, जबकि हमें आगे देखना है। अब मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको निकाल दो ये वो सब, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका टाइम हो गया इस फॉर्मेट में। अब अगर यही लॉजिक जो ये कह रहे हैं कि वो उनको रहना चाहिए टीम में यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट स्क्वाड में क्या गलती की है? उन्होंने क्या गलती की है? वो भी तो यंगस्टर्स को टिप्स दे सकते हैं ना, जो बोलते हैं मुझे वीनस पसंद है, आप टिप्स दो। 100% आई एग्री। मैं HMP मैं अभी भी वीनस मानता हूँ कि उनको ये सीरीज साउथ अफ्रीका सीरीज से नहीं निकालना चाहिए था। तो मतलब 100%। तो वो लॉजिक जो है वो वहां पे एक्सटेंड क्यों नहीं होता? मतलब मेरे हिसाब से ये हम बस बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं वो करेंगे। अब इस बार फेल हो गए तो फिर क्या होगा? 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है तो एक और बार कब तक चलेगा ये? मतलब एज लाइक देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप ना सम टाइम। मतलब वहां पे बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, उन्होंने मिन्नतें करके उसको वापस बुलाया, उसने कह दिया भाई मैं नहीं खेलूंगा इसके बाद। I think I'll be a fence sitter here to add something. तो रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, ODI वर्ल्ड कप में of course he was giving those attacking starts to the team और वो बहुत हेल्प कर रहा था क्योंकि it was taking pressure off the other batsmen over there। और अभी हमने देखा कि T20 में India is coming back to that game plan of going bang bang from the start. You see players who have hitters in the lineup. You have players like Rinku Singh, Jaiswal, Tilak Verma, everybody. So there you wonder what role Rohit Sharma would play. बट थर्ड T20 जो अभी अफगानिस्तान के सामने हुई, वहाँ पे एट 15 overs रोहित शर्मा was on 55 for 47. He had probably 1 or 2 sixes and they were already they had 4 wickets fallen at 22 and then Rinku and Rohit were on the crease. I think that really showed कि रोहित शर्मा के पास कितनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, where he knew कि मुझे अभी स्टार्ट से हिट नहीं करना है, I wait till the 15th over and then he went on and took that score to 121. तो ये जो एक्सपीरियंस है आई थिंक ये यंगस्टर्स के पास नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स रिंकू सिंह ने भी वो पेशेंस दिखाया वेयर ही वेटेड, ही डिड नॉट स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड देन ही कॉम्प्लीमेंटेड रोहित इन दैट इनिंग्स। पर मुझे भी वही लगता है कि ये जो एक एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं या एक अवेयरनेस जो गेम की है स्पेशली T20 फॉर्मेट में, वो रोहित शर्मा के पास है एंड आई थिंक वो रिप्लेस नहीं हो सकती किसी के साथ। नहीं वो बात सही है, एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत एक्सपीरियंस तो सचिन तेंदुलकर के पास भी था, फिर भी उन्होंने फैसला किया कि मैं T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा। वो आईपीएल में आकर रन बनाते थे, रन बनाने की बात ही नहीं है, रन बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अब देखिए पहली बात तो बायलैटरल मैच था, नथिंग एट स्टेक, सीरीज जीत चुका था इंडिया। अब बॉलिंग अटैक तो देखिए, मतलब आपको अपने आप पे गौर फरमाना है कि आप एक बायलैटरल मैच में ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने जहाँ पे राशिद खान नहीं खेल रहा था, नवीन नहीं खेल रहा था, फजल हक फारूकी नहीं खेल रहा था, ऐसे सिचुएशन में हम ट्रबल में थे। और दूसरी बात, ये जो मैच हो रहा है वो इंडिया में बैंगलोर का जो हम जहाँ पे बैठ के जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये भी उससे बड़ा है बैंगलोर वाले स्टेडियम से। नहीं सही बात कह रहा हूँ मैं। तो मतलब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इस बात को इमोशनल हो गए इन दोनों के लिए लेकर। मेरा यही कहना है कि ये इमोशन को साइड पे रखिए। 10 साल से अपने को आईसीसी टूर्नामेंट किसी भी फॉर्मेट में जीता नहीं है। आप अगर इमोशन पे बह जाएंगे तो फिर तो भूल जाइए, इस बार भी अगले साल भी भूल जाइए, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी है और उसके अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, तब फिर यही तमाशा होगा। कहेंगे नहीं उनको तो और एक मौका मिलना चाहिए, उनके अलावा कौन है, एक्सपीरियंस किसके पास है। मतलब वो 2-2 साल मतलब बढ़ते जाएंगे। और ये जो लड़कों की आप नाम ले रहे थे, यशस्वी और रिंकू और शुभमन, उनको सबको आप 11 में फिट कैसे कराओगे? ये दोनों है तो कैसे कराओगे आप? विकेट कीपर कौन होगा? कैसे फिट कराएंगे सबको? फिर वही होगा जो 2022 और 21 में हुआ, जहाँ पे आपके गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं करते और बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते। इंग्लैंड जो T20 वर्ल्ड कप जीता 2022 में, 9 गेंदबाजी ऑप्शन था 11 में और नंबर 9 तक बल्लेबाजी थी। कहाँ है आपके पास? आप तो वही एक मतलब 5 चौथे विकेट के बाद पूरा साइकिल स्टैंड है आपका। तो
कैसे आप जीत पाओगे व्हाइट बॉल टूर्नामेंट? मेरे हिसाब से नहीं जीत पाए. But the problem here is that we did not have enough series to actually figure out what kind of players do we need for this T20 World Cup. Even after this Afghanistan series, Rahul Dravid said that the entire staff is going to keep an eye on the players in the coming tournaments. And what are the coming tournaments? It's only बोलने वाली बात होती है. सर बोलने वाली बात जब होती है, बट तुम एक्चुअली परफॉर्मेंसेस किस बेसिस पे देख रहे हो कि वो आईपीएल में क्या करने वाले हैं. अगर हम वो देखने जाए तो रोहित शर्मा तो कोई टच भी नहीं कर सकता बिकॉज वो 5 आईपीएल ट्रॉफीज लेके बैठा है एंड ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द आईपीएल अलोंग विद अनदर सीएसके मेट. सो द पॉइंट हियर इज दैट अगर तुम आईपीएल के ही परफॉर्मेंसेस मापदंड देख रहे हो, बट वही मापदंड है तो धोनी को भी बुला लो वर्ल्ड कप में. मैं तो अभी भी ले सकता हूँ धोनी को. तुम्हारे पास कीपर का अभी भी प्रॉब्लम है. हमें अभी तक हमारा एक स्पेशलिस्ट कीपर नहीं मिला है. प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्रिएट किया प्रॉब्लम. आपने कभी इतने चांसेस संजू सैमसन को दिए, आपने ईशान किशन को रखा, आपने जितेश शर्मा को रखा, आपने केएल राहुल को रखा, फिर भी अभी तक आप ये आपने ईशान किशन को आप चूंकि एक जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कॉलेज भी है, तो आप जानते हैं आपने ईशान किशन को क्लास में होमवर्क नहीं करने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया. तो डिसिप्लिन एक्शन क्या डिसिप्लिन एक्शन ही ना. आप कहते हो ब्रेक लेना तो ब्रेक लो. द पॉइंट हियर, आपका जो कहने का पॉइंट है ना, मैं उस पे 100% एग्री कर रहा हूँ. बट यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसा है कि हम जिस पैरामीटर्स पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, वो पैरामीटर्स यहाँ पे तो फिलहाल आईपीएल दिख रहा है. अगर आप आईपीएल के बेसिस पे आप डिसाइड करने वाले हो कि आगे का टीम कौन सा होना चाहिए फॉर द T20 वर्ल्ड कप, वो भी पूरा आईपीएल नहीं होगा. आपको मई के पहले हफ्ते में आपका टीम देना पड़ेगा 100%. बट बिकॉज यू नो कि आपको उतना टाइम मिलने भी नहीं वाला है आईपीएल में, तो आप आईपीएल के ही परफॉर्मेंसेस देखोगे. Rohit Sharma as a player in the IPL in the last 2 years, I agree that he has not performed the way he used to perform. Maybe because of the captaincy pressure or whatever he has been facing. But as a captain, he has been really good with the kind of talent that Mumbai Indians has. And Virat Kohli, he's been carrying RCB for almost all the season. I know they have not won the trophy, but again, Virat Kohli has been the standout performer for RCB and again for Team India in all ICC events. So कहीं ना कहीं ये जो हम पैरामीटर्स और डिबेट लेके बैठे हैं कि इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, अभी भी सिचुएशन वही है कि इनके आसपास के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं. सवाल उस पे क्यों नहीं जा रहा है बिकॉज वो लोग नए हैं. ये लोग पे जा रहे हैं बिकॉज ये लोग ने वो प्रूवन परफॉर्मेंसेस दिए बट खाली ट्रॉफी नहीं जीते. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ट्रॉफी जीतने का इंटेंट नहीं रखना है. नो डाउट इनके माइंड में भी यही है. रोहित शर्मा का जो अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस बट जो ग्राउंड पे इंटरव्यू हुआ था आफ्टर द गेम, वो रोहित शर्मा की आंखों में दिख रहा था कि वो वर्ल्ड कप विनिंग हंगर अभी भी है. उसका फोकस था 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतना जो नहीं हो पाया, बट उसने वो फोकस शिफ्ट करके T20 वर्ल्ड कप पे लेके आया है. आज मैं लिख के देता हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो जो लोग ये बोल रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होने चाहिए, वो सब घूम के बोलेंगे कि हमने पहले ही बोला था कि ये लोग को रखना चाहिए. मैं तो रिकॉर्ड पे मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर मैं रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं. ऐसे आप हैं. मेरी तरफ इशारा कर रहे हो. मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं उनको नहीं होना चाहिए. मेरा इशारा सिर्फ आपकी तरफ नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सेकंड में पलट जाते हैं. एंड ये जो लोग पलट जाते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप ये दोनों को टीम से निकाल देते हो और जब अगर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया क्वालिफाई भी नहीं होगा नॉकआउट्स के लिए, जो लोग इतना क्रिटिसाइज करने वाले हैं वही लोग हैं जो अभी बोल रहे हैं कि उनको टीम में मत रखो, फिर बोलेंगे अरे अभी रखना चाहिए था. तो इट डजंट मेक सेंस. एंड व्हेन यू नो दैट यू डोंट हैव एन ऑप्शन, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा स्क्वाड क्या है, तो उस सिचुएशन में तुम्हें ये दो प्लेयर्स को निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है. तो अब इसके पहले पार्ट वो नहीं थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आयरलैंड में नहीं थे, वेस्ट इंडीज में नहीं थे, घर पे श्रीलंका से सीरीज था वहां पर नहीं थे, उसके पहले न्यूजीलैंड में नहीं थे, तब तो नहीं थे ना वो. बट ये एक्सपीरियंस है उनके पास ना. दे आर एबल टू एडजस्ट टू द फॉर्मेट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. यू हैव प्लेयर्स लाइक बुमराह, शमी, विराट, रोहित. These players don't need to play those formats consistently to actually be a part of that squad, because वो लोग ने इतने टाइम से उतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है. They just know what is the right mindset. आज अगर बुमराह को आज आप एक T20 मैच खिलाओ और कल उसको 50 ओवर डालने बोलो, उसको पता चल जाएगा लाइन लेंथ कौन सा एडजस्ट करना है. सेम विद विराट कोहली. विराट कोहली T20 में फर्स्ट बॉल से 2-2 रन भागेगा. शायद 50 ओवर में भी उसका इंटेंसिटी वही रहेगा, लेकिन उसका माइंडसेट रहेगा कि मेरे को एक साइड से एक इनिंग, एक एंड पूरा होल्ड करना है.
ये जो माइंडसेट शिफ्ट का हम बात कर रहे हैं, ये जो इंटेंसिटी है, these players know what format they are playing. They don't need a good amount of time to get into the groove. हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए they will need that 5-6 days to get that practice and then get into the right mindset and all. But these players, when it comes to shifting from 50 over to T20 or shifting back to 50 overs, for them it is like a cakewalk because they have proven time and again, they have played so much, they have the experience, so much experience that they can literally bank on themselves that we are the ones who can be that match winner for our teams. नो, पर ये सिलेक्शन डिलेमा की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ रोहित और विराट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अभी आपने बात की शिवम दुबे की, तो वो जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन जो शिवम दुबे लेके आता है टीम में, वो सेम ऑप्शन हमारे पास हार्दिक पांड्या के फॉर्म में है। एंड लेट्स से टुमारो हार्दिक पांड्या गेट्स बैक टू फुल फिटनेस व्हिच ही विल वेरी श्योरली एंड वेरी सून वी होप, तो शिवम दुबे ड्रॉप होने वाला है, व्हिच बिकम्स वेरी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों इंडिया में धारणा बनी है कि आपके 15 में सिर्फ एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकता है। करेक्ट। कहाँ पे लिखा है? कहीं पे लिखा है? नो, आई एम नॉट सेइंग इन द 15, इन द स्टार्टिंग 11। 11 की बात छोड़िए, 11 तो मतलब मैच के दिन मतलब पिच कैसा है उसके हिसाब से आप उसके बाद छोड़िए। नहीं, बिकॉज़ द क्वेश्चन आई वांट टू रेज हियर इज कि क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अभी स्पिनर्स की भी अगर हम बात करें तो देयर हैव बीन प्लेयर्स लाइक वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल फॉर दैट मैटर, इतने सारे जब आपके पास ऑप्शंस है, आई फील कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के पास एक कोर टीम रेडी नहीं है जहां हम कहते हैं कि 5-6 प्लेयर्स का सिलेक्शन प्रोबेबली गिवन है कि ओके यार ये प्लेयर्स टीम में तो है ही है, चलो इनके अराउंड अब बाकी की टीम। मैं बता रहा हूँ आपको किन प्लेयर्स, जो प्लेयर्स डेफिनेटली होंगे। बुमराह तो डेफिनेटली होंगे, राइट। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली होंगे, राइट। सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली होंगे, राइट। रिंकू सिंह डेफिनेटली होंगे। यही आपके 4 प्लेयर होंगे। राइट। उसके अलावा मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, विराट कोहली और रोहित शर्मा डेफिनेटली होंगे। तो आपके 6 खिलाड़ी वहीं पे हो गए। राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है मतलब मुझे नहीं लगता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ इस बात से भी कि आपके पास स्पिनर्स जो है, आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप स्पिनर्स को स्पिनर्स के तौर पर ना देखें, आप जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के तौर पर देखें। 100%। तो मुझे लगता है कि वहीं पर हम गलती करते हैं और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस काफी बार 11 पे होता है, 15 पे होना चाहिए। और पता नहीं कहाँ पे किसने कहा है कि आपके 15 में सिर्फ एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। आपको वहीं पे आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप की कैंपेन पूरी तरह से उलट हो गई। करेक्ट। राइट। क्योंकि आपके पास कोई 6th बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं था। और जिस दिन सबने बॉलिंग किया बेंगलोर में नेदरलैंड्स वाले मैच में, तो बहुत बड़ा खिल्ली उड़ा रहे थे, सब लोग मजाक हो रहा था। जब आपको चाहिए था तब कोई नहीं था आपके पास। राइट। मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये इट इज आपको पता है आपका स्क्वाड क्या है। ये राहुल द्रविड़ का कहना, मतलब वो तो कहना पड़ता है उनको, मतलब वो भी जानते हैं उनके मन में कौन है। उनको पता था उनका ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या है। 4 महीने पहले पता था उनको ओडीआई वर्ल्ड कप कौन खेलने वाला है। वो तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर फिट हो गए और बुमराह भी फिट हो गए, पूरा तैयार था उनका स्क्वाड। उनको पता है स्क्वाड क्या है, बट कहना पड़ता है ना। वो पब्लिकली आके ये तो नहीं बोल सकते ना, अजीत अगरकर के बेचारे का पगार भी तो मिलना चाहिए ना उसको, फिर है कि नहीं। But then is it fair on players like for example if you say कि हम रोहित और यशस्वी जायसवाल की एक ओपनिंग पैर अगर देखें, परफेक्ट राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, विराट कोहली कमिंग इन एट 1 डाउन एंड देन यू हैव स्काई जिसको आप टीम से बाहर नहीं निकाल सकते, so then a big player like शुभमन गिल misses out, so how fair is it on his part? शुभमन गिल अगर आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में होता तो 2021 और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलता। करेक्ट। वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में T20 क्रिकेट में वो और श्रेयस अय्यर वो तभी आते हैं जब आपके बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे। मसलन जुलाई में जब इंडिया श्रीलंका जाएगा T20 और ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वो दोनों नहीं होंगे, वो दोनों होंगे सॉरी, और आपके 2 दिग्गज नहीं होंगे। करेक्ट। तो वो तभी आएंगे जब ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि उनका गेम जो है पता, आपके पास काफी ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो सिर्फ एक जैसे हैं। विराट, शुभमन, श्रेयस, सब एक जैसे खिलाड़ी। और तीनों क्या है, कुछ और करते नहीं है, मतलब ऐसे लाइक शुभमन और श्रेयस बॉलिंग में स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 3 प्लेयर्स आपके पास। हां राइट। आप वो एक्स्ट्रा मतलब काफी मैच ऐसे होता है कि आपको बैटिंग ही नहीं आता फिर, और फिर आप सिर्फ फील्ड में होते हो, फायदा क्या आपका T20 क्रिकेट में। अभी तक इंटरनेशनल T20 में वो क्या वो
इम्पैक्ट रूल नहीं आया है राइट जहाँ पे Up. वो Correct. बदल सके जो तो आईपीएल में रूल And you have other teams that actually go with that mindset. You talk about England, you talk about Australia. The lower order actually contributes towards the run scoring part. पैट कमिंस और Pat Cummins, Mitchell Stark can hit long उन्होंने sixes. सेमीफाइनल जिताया Exactly. Right. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल था दे वन द मैच फॉर राइट And their keepers also contribute. Matthew Wade, he actually won the T20 game against Pakistan, the 2021 against Pakistan. Shaheen Shah Afridi hit those 2 sixes. हमारे keepers, even if we try to bring that into picture, except Ishan Kishan, you don't have someone. You gave chances to Sanju Samson. He could not, maybe capitalize it. I disagree with you on that. मुझे लगता है कि जितेश शर्मा is a very good option. I think He can be, but again, because if you have Jitesh Sharma versus Ishan Kishan, maybe having a left-hander in the squad gives that advantage, and they will पता नहीं always वो go. But you मतलब never know. वो वो Ishan Kishan का वही क्या है उसका सिचुएशन किसी को पता नहीं है डिनाई Correct. करते हैं Correct. सिचुएशन पता situation no one knows. Right. और What about the शायद- case of Rishabh Pant again coming in for the यार बहुत बड़ा रिस्क है वो बहुत बड़ा I रिस्क agree, बहुत बड़ा बड़ा risk risk है. है। And कैसे हमारा problem कहाँ पे दिखेगा पता है? Once Rishabh Pant starts playing in the IPL, and if for the first 2-3 games he actually converts himself into a big score, and उसने let's say 3 गेम में से 250 मार लिए. Again, the entire scenario will become Rishabh Pant coming into the squad, into the playing 11 directly. बट ऋषभ पंत के साथ भी अगर आपने देखा होगा ही वॉज नेवर योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर इन T20 इंटरनेशनल्स राइट पहले उन्होंने केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराया Correct. उसके पहले महेंद्र सिंह धोनी थे उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद आपने दिनेश कार्तिक को वापस लेके आया मतलब आपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ना कुछ उनके स्टाइल में कोई कमी देखी थी जिसकी वजह से आपने उसको फर्स्ट चॉइस T20 इंटरनेशनल विकेट कीपर नहीं वो इंडिया का पिछले 5 साल में बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज है ऋषभ पंत राइट पर T20 इंटरनेशनल्स और वनडे इंटरनेशनल से वो आपका फर्स्ट चॉइस नहीं रहा है Correct. राइट पर अगर हम बात करें सिलेक्शंस की जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि आईपीएल विल बी अ बिग फैसेट फॉर सिलेक्शन एंड ये सारे प्लेयर्स वहीं पे खेलने वाले हैं संजू सैमसन की हम बात करें जितेश शर्मा ऋषभ पंत तो इजंट इट फेयर कि आईपीएल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन से प्लेयर्स उस स्क्वाड में या स्टार्टिंग 11 में इंक्लूड हो जाए भाई बट प्रॉब्लम ये है कि जून 1 तारीख को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है राइट आपको 30 दिन पहले अपना प्रोविजनल 15 मेंबर स्क्वाड देना है राइट जून 1 मतलब आपको मई के 1 तारीख तक पहला अपना प्रोविजनल स्क्वाड देना है और मिड मई तक आप अपने स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे में ये हो जाएगा कि आप जो है अपना प्रोविजनल स्क्वाड जो पहले के 6-7 मैच होंगे हर टीम के 6-7 मैच ही खेलते हैं अराउंड या तो उसके बेसिस पे करोगे Correct. राइट तो उसमें अगर कोई फेल हो गया तो सेलेक्ट नहीं होगा मतलब उस बेसिस पे जिस तरह से रोहित शर्मा का फॉर्म रहा है आईपीएल में पिछले 2 साल में वो selection नहीं हुआ the तो- only basis he will be selected is the captaincy then. तो ये तो नहीं हो सकता ना ये मतलब ये सब मतलब मेरे ख्याल से और उन पहले 1.5 महीने में अगर किसी ने बहुत जबरदस्त आके बॉलिंग कर दी हमारे यहाँ पे ये होता है ना आईपीएल के दौरान रोज इंडियन टीम बनता है रोज कहते हैं कि रोज ये होना चाहिए इंडिया के टीम में बोलते हैं पर ये नहीं बोलता कौन से फॉर्मेट में इंडियन टीम में होना चाहिए बोलता है ये बताते नहीं कौन से फॉर्मेट में और उसकी वजह से क्या मतलब वो अब ऐसा लगता है ना आईपीएल के दौरान कि आप इसको भी खिलाना चाहिए उसको भी खिलाना चाहिए उसको भी खिलाना चाहिए राइट आपको आपके मन में पता है आपका प्लेयर कौन है ये सब बोलने वाली बात होती है कि ये करना है वो करना है But the इसलिए problem has arisen because everyone suddenly believes that IPL has become that platform to bring in the players in the ODI, T20 or Test squad. And that has actually put a lesser relevance to Ranji Trophy and all the tournaments that are happening around. Even the players who are playing there, they might say that, okay, our aim is to go and represent the country. But again, back of the mind, they know that they have to get into IPL and then perform, and that will make it easier for them. Right. And we are to blame for that. I mean, the selection committee or whoever is actually looking at that and keeping that as the parameter for selecting the players, they have created that environment over the last few years that if you perform there, you spoke about Dinesh Karthik being there in the T20 World Cup squad. How did that happen? Because he had a wonderful season for RCB. He won them games, and then eventually you see him getting a chance to be in the squad. So if
that becomes unfair for all the other players who are trying to actually make their way into the squad. So even they will look up to that in a way कि हमको भी IPL में परफॉर्म करना पड़ेगा एंड आके हम लोग को वहां पे. बट आई डोंट थिंक वो गलत है कि क्योंकि आईपीएल आपका डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट है, आपको अपना टी20 स्क्वाड बनाना है तो आईपीएल के बेसिस पे. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सिचुएशन में जब ये टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे पास इसके अलावा और कोई पैरामीटर्स था ही नहीं जज करने के. पर आपको पहले से पता आपका स्क्वाड क्या होगा. बट अभी के लिए दिखाने के लिए तो ये करना पड़ रहा है ना. जैसा आपने बोला कि वो 1 मई को उनको जाके वो स्क्वाड देना है, तो एटलीस्ट 20 सेकंड मार दिया जब से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तब से लेके एंड ऑफ अप्रैल तक तो वो लोग यही करेंगे ना. अच्छा, रोहित शर्मा ने हेडलाइंस वही बनने वाला है, रोहित शर्मा scores a 50 or something, the next day Times of India or some other paper will come and tell that okay, these are the players that have actually earned their place. Rohit Sharma the stellar captain who might help. तो ये हेडलाइंस और ये सब न्यूज़ बनाने वाले कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम भी है, बिकॉज हम भी वही एंटिसिपेशन से वो देखने वाले हैं एंड दैट इज इवेंचुअली द ट्रूथ. आई मीन यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम दैट. नो डाउट आपका कितना भी स्क्वाड रेडी हो, मेरे को पता है कि अगर रिंकू सिंह कितना भी फेल होगा, मैं चाहता हूँ कि रिंकू सिंह वो स्क्वाड में रहने ही वाला है अगर वो आईपीएल में फेल हुआ तो भी, क्योंकि ये एवरेजेस अराउंड व्हाट 86 89 राइट नाउ. सो प्लेयर्स यू नो दैट हाँ ये प्लेयर्स है, स्टैंड आउट प्लेयर्स है, बट कुछ ऐसे एक दो प्लेयर्स होंगे जो शायद ये आईपीएल के स्टार्ट में कुछ एकदम एक्सेप्शनली परफॉर्म करे एंड दे माइट बी अ सरप्राइज एंट्री टू द स्क्वाड. एंड प्लेइंग 11 में तो आना बहुत मुश्किल है बिकॉज हमने आधा प्लेइंग 11 तो यहाँ ही डिस्कस कर लिया है. बट वो 15 का जो स्क्वाड बनेगा उसमें भी कुछ प्लेयर्स के चांसेस तभी बनेंगे जब वो आईपीएल में अच्छे से परफॉर्म करे. अगर आई डोंट थिंक इफ शिवम दुबे डजंट परफॉर्म वेल इन द आईपीएल इन द इनिशियल गेम्स, आई थिंक ही माइट बी केप्ट आउट इफ हार्दिक पांड्या इज फिट. I agree to what he said that India should have fast bowling all-rounders or medium pacers who can actually bat well. But वो नहीं होने वाला है. When you see them not performing, वो लोग को नहीं रखने वाले because वो mindset पहले जैसा नहीं रहा. They are still looking for specials. ये जो अभी अफगानिस्तान वाला सीरीज हुआ था, शिवम दुबे मैन ऑफ द सीरीज 100%. और आप कह रहे हो कि वो 3 मैच में परफॉर्म नहीं किया आईपीएल में, तो ये ट्रूथ होने हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, बट कहीं ना कहीं ये पूरा माइंडसेट और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एनवायरनमेंट बना दिया है वो यही दिखाता है कि तुम्हें आईपीएल में परफॉर्म करना है, तुम आईपीएल में परफॉर्म करो तो तुम स्क्वाड में आ जाओगे, तुम ना करो तो तुम स्क्वाड के बाहर रहोगे. बट ये अप्लाई सिर्फ उन प्लेयर्स को होगा एक्सेप्ट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बिकॉज वो आपके प्लेयर्स रहने ही वाले हैं. No, like I'll talk about and back IPL और उसकी credibility. I think what becomes important in the IPL, especially even हम इंडिया की बात एक बार ही साइड में रख देते हैं, हम बात करते हैं अफगानिस्तान जैसी टीम की. अब अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको बड़े टूर्नामेंट्स में और बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने का चांस आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में मिलता है. सो व्हेन यू नो दैट दीस प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, उनको पता है कि जब वो टी20 इंटरनेशनल मैचेस में इन प्लेयर्स को फेस करेंगे वो सेम प्रेशर वो प्रॉब्ली फील नहीं कर रहे. सो आई डोंट थिंक आईपीएल इज अ बैड प्लेटफॉर्म टू जज प्लेयर्स फॉर, स्पेशली हमारे केस में क्योंकि हमारे पास इनफ गेम्स नहीं रहे. अफगानिस्तान वाली सीरीज भी हम कहेंगे कि अफगानिस्तान इज अगेन नॉट अ टॉप टीम. सो ऑफ कोर्स लीविंग आउट प्लेयर्स और सिलेक्टिंग प्लेयर्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल वुड बी अनफेयर. बट क्या ऐसे एक दो नाम आप बता पाएंगे कि ऐसे कौन से प्लेयर्स होंगे जो प्रोबेबली डायरेक्टली स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना लेंगे इफ दे प्ले गुड इन द आईपीएल, हु आर प्रोबेबली नाउ इन दैट 50-50 जोन? ऐसा मतलब मुझे लगता है कि दीपक चहर है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी, वो टी20 क्रिकेट में अच्छा करते हैं. वो साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में थे पर जा नहीं पाए क्योंकि उनके फादर साहब बीमार थे. उसके पहले ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में आखिर के 2-3 मैचेस में आए टीम में. तो आई थिंक दैट दीपक चहर इज समबडी दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अलोंगसाइड बुमराह एंड अर्शदीप. मेरा नहीं मानना है कि शमी और सिराज को होना चाहिए टी20 स्क्वाड में. मुझे एंटी नेशनल कहते हैं सब लोग कि मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शमी, सिराज, इन सबको मैं बोल रहा हूँ बाहर होना चाहिए. पर मेरे हिसाब से शमी सिराज का ये फॉर्मेट नहीं है टी20 क्रिकेट. मेरे हिसाब से बुमराह तो डेफिनेटली होंगे, अर्शदीप को होना चाहिए और उनके साथ में दीपक चहर को होना चाहिए. और एक चौथा नाम है जो मैं बहुत देखना चाहता हूँ, पिछले साल भी देखना चाहता था क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे श्रीलंका के खिलाफ, शिवम मावी. वो भी ऐसे खिलाड़ी हैं दीपक चहर जैसे, उनसे थोड़ा ज़्यादा तेज बॉलिंग करते हैं और वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं नंबर 8 नंबर 9 पे आके. गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं. इज अ पैकेज. मैं हैरान था कि मैन ऑफ द सीरीज होने के बाद
उसके बाद जब आईपीएल था गुजरात टाइटंस में, उसी कप्तान ने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया करेक्ट। और वो उसके बाद इंजर्ड हो गए। और right. जब रणजी ट्रॉफी होता है तो आधा इंडियन क्रिकेट रिहैब में होता है, तो इस वक्त सब रिहैब में, तो मार्च में सब फिट हो जाएंगे, तो होपफुली ही परफॉर्म, ही इज वन प्लेयर। तो मुझे लग रहा है ये 4 को तो डेफिनेटली होना चाहिए। सॉरी मैं 15 अपना बता रहा था अभी। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि अक्सर को भी होना चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर को भी होना चाहिए। तो एक दुविधा में वो कुलदीप और रवि बिश्नोई के बीच में, जडेजा होंगे ही होंगे, हार्दिक भी होंगे। तो मतलब एज एन ऐसा कोई खिलाड़ी बाहर नहीं है जो अंदर गुलाटी मार के अंदर आने वाला है, सिवाय दीपक चहर और मेरे जो 2 चॉइस है। विकेट कीपर में भी आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अंत में हम बात कर लें जिस किसी की भी, अंत में जाएंगे केएल राहुल। वो माहौल बन रहा है, माहौल बनते हमें दिखता भी है। तो केएल राहुल को अभी अगले इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है उसमें एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के रोल में इंडिया के लिए नहीं, जब स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था उनके नाम के बगल में WK लिखा गया था। राइट बट इट वाज द न्यूज़ अमंग सेलेक्टर्स कि उन्हें एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन न्यूज़ अमंग ने ये सोर्सेस ने कहा। इंडियन क्रिकेट में कभी कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, एवरीथिंग इज थ्रू सोर्सेस। तो ये सोर्सेस ने कहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केएल राहुल का जो है, मतलब अभी तक कुछ वो दे विल ट्राई एंड कैटापल्ट हिम इनटू द विकेट कीपिंग रोल एंड उनका एक पुनर्जन्म हुआ है इंडियन क्रिकेट में। Yeah, but what we have seen is no one is talking about Chahal trying to get a place in the squad. I mean, Chahal as a bowler is one of the best T20 bowlers that we had for a long period of time. But unfortunately, where he misses out against Bishnoi is that Bishnoi brings that skidiness, that pace. Plus, agreed. He's a better fielder. Yeah. He's more athletic, more energetic, and वो चहल के केस में आपने मतलब वो बना दिया है। correct. पर बाकी केसेस में आप नहीं कह रहे। सिराज को आपने देखा टेस्ट मैच में, कैप्टन वाले टेस्ट मैच में, वो प्रसिद्ध कृष्ण ने बॉल ऐसे ही खेला, वो भाग खड़ा हुआ। मुझे पुराने दिनों की याद आ गई जब श्रीनाथ और राजू भागते थे, और फील्डिंग में भी मतलब कुछ खास नहीं है। मतलब यू कांट हैव दैट मच लायबिलिटी ऑन द फील्ड ना। तो आप कितना बचाते रहोगे T20 क्रिकेट? Yeah, in T20 you need that player to take all of your boxes. If he is just a batsman, then he has to be a better fielder than being a better batsman. Because again, वो जो T20 environment है, it somehow needs you to have your best 11 out there on the field. And again, bringing back the topic of whether having Rohit Sharma and Virat Kohli 101% a very good fielder. He's one of the best batsmen, the king of cricket at the moment. And Rohit Sharma, his captaincy skills, his batting skills, he's a very good player to have in your squad. So हम कितना भी और बात कर ले, हमने अब तक जितना भी डिबेट किया है, डिस्कशंस किए, हम बाकी का स्क्वाड अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। बट ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका आप नाम लेते हो ना, आपको एक श्योरिटी रहता है कि ये 2 अगर टीम में होंगे ना, तो टीम एटलीस्ट नॉकआउट तक तो पहुंच जाएगी, और आगे हमें क्वालिफाई करने के लिए थोड़े प्लेयर्स चाहिए। देखिए पांच साहब, मैं आपको बता दूं वेरी क्लियरली, अगर ये जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, ये क्वालिटीज अगर किसी और टीम को भी दिखता तो वो उनको कप्तानी से नहीं हटाते। करेक्ट, मतलब दिखा नहीं है। करेक्ट, वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। वो इमोशनल डिसीजन का बात नहीं है। चलो कप्तानी से हटा दिया, नो डाउट कप्तानी से हटाया, जो भी उसके पीछे हुआ था, बट अभी के लिए हमारा प्रायोरिटी इज व्हाट इज कमिंग अहेड ऑफ अस, एंड दैट इज द T20 वर्ल्ड कप। एंड देयर you need to keep a mindset that okay, these are the 2 players who are the ones that are going to be your strong foundations. Rohit Sharma at the top of the order, he's trying to go and express himself the way he did in the 50-over World Cup, maybe in a much better way that we saw in the 30-20 against Afghanistan. And Virat Kohli, even though he had the same mindset, the same intensity, he couldn't convert that, but we have seen that in the ICC tournaments where he has done it, and that too in crunch situations, crunch matches. Exactly. So कितना भी हम बात कर ले, कितना भी हम बाकी प्लेयर्स के लिए डिबेट कर ले, ये दोनों तो स्क्वाड में रहने ही चाहिए। नहीं, चंद्रेश सर, आप कैप्टेंसी की भी बात कर रहे थे, अभी आपने बताया कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाला गया जब मुंबई इंडियंस के, तो एक बहुत नेगेटिव मैं कहूँगा पब्लिक रिएक्शन, या एक जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन था पब्लिक से वो नहीं मिला व्हेन हार्दिक पांड्या वाज अनाउंस्ड कैप्टन।
और लेट्स से हम फ्यूचर में ऐसा कह देते हैं कि रोहित शर्मा को स्क्वाड से बाहर निकाला जाता है, तो द ऑब्वियस कैप्टेंसी ऑप्शन कम डाउन टू हार्दिक पांड्या और लेट्स से सूर्य कुमार यादव. तो विल इंडियन फैंस बी एबल टू डाइजेस्ट दैट? यार अल्टीमेटली आप डिसीजन इंडियन क्रिकेट के लिए ले रहे हो, फैंस के लिए नहीं. ट्रू. ये एक नया टट्टा शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया वाले क्या सोचेंगे. करेक्ट. ये तो वही हो गया, मतलब वो थ्री इडियट्स से बोल रहे हैं, वो बगल वाले अंकल क्या सोचेंगे कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो और फोटोग्राफी में जाना चाहते हो. मैं तो मुझे नहीं पता, मतलब एज इन लाइक अगर ये होता तो राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को 2007 में कभी वो लोग वनडे टीम से ड्रॉप नहीं करते. तो मतलब ये कौन क्या सोच रहा है. ये एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, बाद में सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं. यार सबको रोजी रोटी कमाना है, सबको अपना अपना काम करना है. ये सब मतलब ये सोशल मीडिया पे क्या बोलेंगे उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते. ट्रू. बट फैंस का एक बहुत बड़ा एंगल ऑफ कोर्स आ ही जाता है, एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी T20 फॉर्मेट को एक कैटेपुल्ट की तरह देखा जा रहा है टू मेक क्रिकेट मोर ग्लोबलाइज. द वेरी फैक्ट दैट ये वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज इसे को-होस्ट कर रहा है, shows you that the game is going places, right? And the main carrier of this is the T20 format, क्योंकि it is dynamic, it is entertaining, लोगों को बड़े बड़े छक्के देखने मैचेस में, फास्ट पेस, हाई रन्स वाले मैच देखने. तो in keeping all this in mind, having someone like Virat Kohli, who is the face of the game, okay, you maybe if you have to name one Indian player जो overseas हर country में किसी को पता है तो वो विराट कोहली है. That makes a strong case for him again. अगर उसके पास रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो पिछले 4 T20 वर्ल्ड कप्स है उसमें 2 में he has been named man of the series and in 2 of them he's been the highest run getter. तो ये past records, are they a good way to judge him whether he is going to get selected here? क्या मतलब टूर्नामेंट कौन जीता? टूर्नामेंट कौन जीता? The fact है टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, बट टूर्नामेंट नहीं. if you look at पूरे the other 90 के teams- दशक में सचिन तेंदुलकर हमेशा हाईएस्ट रन गेटर होते थे. टूर्नामेंट कौन जीता? मेरे सवाल का जवाब आपकी खामोशी है. नहीं, बट उस वे में सचिन को निकाल तो नहीं दिया था ना. नहीं बट टूर्नामेंट सचिन को रखने के बाद जब 2011 में हम जाके जीते भी, तब किसी ने वो सवाल नहीं उठाया कि 90s में तेंदुलकर को टूर्नामेंट टीम से क्यों नहीं निकाला. एंड में तेंदुलकर ने अपने आप ही डिसाइड किया ना कि मैं T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा कि ये फॉर्मेट मेरा नहीं है. देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन मेकिंग एबिलिटी पे कोई शक नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रन तो बना देंगे, रन बनाने की बात ही नहीं है. अब आप मतलब किस बेसिस, मतलब एज इन लाइक बात यह है कि आपने एक फैसला किया कि आप इस रोड पे चल रहे हैं. भले ही आपको गूगल मैप कह रहा है कि यहां से चलिए, ये आपको मतलब अंदर की गलियों से लेके जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे. आपने कहा नहीं मैं इसी रोड पे रहना चाहता हूं, तो आप अड़िग रहिए ना. मतलब यू बी फर्म ऑन योर डिसीजन. और फिर आप यहां से गए और पता चला वहां पे भी ट्रैफिक है. मेरा वही कहना है, रन बनाने की बात ही नहीं है. ये फॉर्मेट ऐसा है. आप देखिए इंडिया का मैचेस किसके साथ है. अगर वो यूएसए, कनाडा और आयरलैंड, हाँ, इनके सामने रन नहीं बनाएंगे तो किसके सामने रन बनाएंगे. अब तो पाकिस्तान के सामने भी रन बनाने में आसान हो गया फिर उनको. मेरा तो वही मानना है. नहीं, बट अभी भी मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ थॉट यही है कि सवाल सिर्फ इन दोनों पे क्यों आता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली स्क्वाड में होने चाहिए नहीं. अगर हम बात कर रहे हैं टूर्नामेंट्स इतने टाइम से नहीं जीते, बाकी भी तो प्लेयर्स थे, बाकी जो बदले constant हैं, है. बाकी जडेजा बदले. अभी भी स्क्वाड में है. जडेजा स्क्वाड जडेजा में तब से लेके अब तक अभी भी स्क्वाड में है. बाकी प्लेयर्स आपने जो बदले और हैं, और कौन? बदलने का रीजन क्या था? बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली तब से लेके अब तक परफॉर्म करते आ रहे मैं वो हैं. नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि रन वो तो मतलब आधे रेंज में भी जाके बनाएंगे. नहीं तो बात ये नहीं है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रन्स 100% वो रन्स बनाने वाले, बट क्या हम टूर्नामेंट उन दोनों की वजह से हार रहे हैं? Is the right question to ask, and the answer is definitely no to that. पिछले सेमीफाइनल में तो उन दोनों ने भी स्लो बैटिंग किया था. तो सेमीफाइनल में उन्होंने स्लो बैटिंग किया जिसकी वजह से 2016 2021 में आप क्वालिफाई नहीं हुए.
2021 वाले में तो पूरा टीम ही ऐसा खेल रहा था, मतलब वो 2016 में आप आउटडेटेड टी20 खेल रहे थे, आपको लगा आप बहुत स्मार्ट हो, आप कम डॉट बॉल खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज ने ज्यादा छक्के मारे चौके मारे और मैच जीत लिया उन्होंने। बट दैट इज वेयर द शिफ्ट आल्सो केम इन द इंडियन इकोसिस्टम। तब तक हमारा पूरा इंडियन क्रिकेट उस वे में खेल रहा था। इफ यू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट, 2016 में इंग्लैंड भी तब कुछ खेल नहीं रहा था। इंग्लैंड, जॉस बटलर एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग that entire T20 mode into the 50 over setup also, which also gave England a chance to bring that same into the T20 scheme of things, and तब जाके इंग्लैंड 2019 में वर्ल्ड कप जीता, जो इंडिया ने बाद में वो अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि हमने वो लेट अडॉप्ट किया, मानते हैं हमने वो लेट अडॉप्ट किया जिसके वजह से हम वो टूर्नामेंट्स हारे हैं, बट are these two players the reason why we have lost it? That's definitely not the answer. अगर यही दो होते तो शायद वो लोग 2021 में ही निकाले जाते थे। देखिए, किसी ने उनको बलि का बकरा नहीं बनाया, आपने फैसला किया कि आप दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, मेरा वही कहना है, आप वापस जाओ, ये गलत है मेरे हिसाब से। So is it a step forward or a step backward? मुझे लग रहा है पीछे जाना। But I think considering the time that we have right now, this is the best option that we have. Maybe going ahead after this tournament, irrespective of what happens, that is when you start communicating to not only these players, but that communication must go through all the players who are playing cricket actively and who want to be a part of that squad, that this is what we are looking for. We know the T20, next T20 World Cup is going to be there in 2 years' time. In India. This is the 2-year period that is going to define whether you will play in that series or not, and not whether just after the next ICC event is what we will decide. Right. If again we go back to the same parameters of judging the players whether they will play the next T20 World Cup, then I feel that Virat Kohli still deserves a chance to be there in the 2026. Right. But if we are keeping that communication wide open immediately after the T20 World Cup, that okay, this is done, that this is what we want from the set of players. If again Virat Kohli qualifies or Rohit Sharma qualifies to play that, which I don't think they will only play, they will put their heads down. But then if that actually happens and they qualify with the kind of things that the team is looking for, then it absolutely makes sense for them to be in the squad again. I mean, and एक sentimental part, एक sentimental मैं कहूँगा facet भी है इस पूरे केस को कि they weren't able to win the World Cup this time around. And रोहित शर्मा की opening statement आपने वही बताया कि उस कॉन्फ्रेंस में वही थी कि my goal is to win the World Cup again. And उनके कैरेक्टर को तो ऑफ कोर्स कोई जज नहीं कर सकता, they always put the team first. I'm not saying कि उनके performances उस चीज़ को हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते, बट जब मुझे लगता है उन प्लेयर्स को खुद समझ आ जाएगा कि वी आर प्रॉब्ली नॉट फिट इनटू द T20 फॉर्मेट और वी डोंट ऐड समथिंग टू द टीम, दे विल स्टेप डाउन ऑन देयर ओन. बट लेट्स से इफ दे आर केप्ट आउट ऑफ द स्क्वाड, व्हाट इज वन बिग थिंग दैट इंडिया विल मिस इन द T20 वर्ल्ड कप इफ बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड? मतलब आप वो होता है ना, मतलब जब बच्चे आप बच्चों को आप स्विमिंग पूल में डालते हैं तो आप तैरना सीखिए, डूबेंगे तो डूबेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा आपने पिछले 10 साल में टूर्नामेंट जीता है जो इस बार नहीं जीते तो बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा? But what I am looking at is stability is something that we will miss. Okay. आज एक as a fan, I'm not saying from the cricketing perspective, but as a fan and going by the emotions, आज मैं जब सोता हूँ तो मेरे को एक अंदर से बिलीफ है कि हाँ, जब T20 वर्ल्ड कप आएगा ना, मेरे रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में है, वो लोग कुछ नहीं करके तो एटलीस्ट हमको आगे तक लेके आ जाए। इस उम्र में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की सपना देखकर आप सोने जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का बात है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं हो रही है, ना मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज अगेन दैट ब्रिंग्स दैट कॉन्फिडेंस एज अ फैन दैट दिस इंडियन टीम इज स्टिल इन सेफ हैंड्स. इफ यू ब्रिंग दीज टू प्लेयर्स आउट, आई एज अ फैन और द पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज गेम्स एंड ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू आवर माइंड्स इज भाई हम लोग क्वालिफाई भी करेंगे ना नॉकआउट्स के लिए, एटलीस्ट हमारे पास वो अश्योरेंस है कि ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं दैट विल टेक द टीम अहेड. बट एज यू राइटली सेड दैट देयर मे बी अ सिचुएशन irrespective of what happens, let's say going ahead they are not there in the squad, that one question will always remain, that are we now capable of actually, अभी तक क्वेश्चन ये था कि हम ट्रॉफी जीत सकते हैं कि नहीं, exactly. अब आगे क्वेश्चन हो जाएगा हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं. No, but with the group that India has, अभी हमने मैचेस की अभी बात की, USA, कनाडा, आयरलैंड, पाकिस्तान, I think सबसे पहले तो इनको ये ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान को रखना जो है वो बंद कर देना चाहिए.
I mean वो किस वे में हर बार इंडिया और पाकिस्तान वो एक्सीडेंटल है, मतलब ऐसे I mean, ये बहुत एक्सीडेंटल एक्सीडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। नहीं, बट आई डोंट, मतलब एज इन लाइक मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और आप जो कह रहे थे, देखिए आप पहले राउंड से दूसरे राउंड में तो चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुझे लगता है जिस तरह से पाकिस्तान जो है आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेल रहा है, उनके बैटिंग अप्रोच के देखे, तो आई थिंक दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ये सेकंड स्टेज में वो टीम्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि T20 क्रिकेट कहाँ चला गया। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना इंडिया के लिए, आपके जो खिलाड़ी है ना वो IPL के अलावा कोई T20 टूर्नामेंट नहीं खेलते। बाकी सब जो खिलाड़ी है दुनिया भर के लीग्स खेलते हैं, तो उनको पता है सिचुएशन क्या है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में हर साल जाके खेलना, हर सिचुएशन में हर परखना अपने आप को, वो आपके खिलाड़ियों के पास वो एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आप मिस आउट कर जाते हो। So then doesn't it make the case for Rohit and Virat even stronger for them to be in the team? No, I don't think so. आपके पास रिंकू है, यशस्वी है, हार्दिक है, सूर्या है, आधा टीम तो बल्लेबाजी क्रम, तो इससे ज्यादा तो आपको बल्लेबाजी जरूरत भी नहीं होगी। राइट, बट क्रंच सिचुएशंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पिच, लेट्स से हाइपोथेटिकली चेन्नई में मैच है और हमें पता है कि इस पिच पे बड़े रन्स नहीं बनने वाले, प्रॉब्ली योर हिटर्स वोंट रियली सपोर्ट। क्रंच सिचुएशन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था 2022 का, 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था। ये सब तो क्रंच सिचुएशन है ना। 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था। क्रंच सिचुएशन क्या हुआ? No, I mean fair enough. I get where you're coming from. देखिए मैं जो कह रहा हूँ ये होगा नहीं, बट मैं अपनी बात रख रहा हूँ। No, I understand. बट वही है जो पार्थ सर भी बता रहे थे कि ये क्रंच सिचुएशंस में हमने परफॉर्म नहीं किया, दैट इज ट्रू। बट उस क्रंच सिचुएशन में होने के बाद जो 1% होप रहता है वो उन प्लेयर्स से ही आता है। इन द एंड वी नो दैट मे बी इफ वी डोंट हैव दोस टू प्लेयर्स, यू से दैट ओके दिस मैच इज ऑलरेडी गॉन, ये मैच तो हाथ से गया। सो that belief or that hope that they bring कि यार कुछ तो हो सकता है अभी भी इस मैच में, वो तो I think you can't take away from those two players. देखिए मैंने आपको गिना दिया पिछले 6 साल का कच्चा चिट्टा, तो मुझे नहीं पता कि क्या इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ उसके बारे में। 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अगर हम देखेंगे, जब रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली खेल रहा था, एंड जब विराट कोहली जब तक क्रीज पे थे, यू सॉ विकेट्स फॉलिंग एट द अदर एंड, बट जब तक वो खेल रहे थे, वो उन्होंने जब वो आउट हुए, दैट इज वेयर वी लॉस्ट द होप कि हम अब वर्ल्ड कप हार रहे हैं। सो इज इट विराट कोहली और रोहित शर्मा टू ब्लेम दैट वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप, और इज इट द अदर प्लेयर्स हु कुडंट कंट्रीब्यूट? बट क्वेश्चंस कहां रेज हुए कि विराट कोहली इतना अच्छा खेल रहा था, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहे थे, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट वर दे ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर स्कोर्स और वर दे ट्राइंग टू विन इट फॉर द कंट्री? And if they are also trying to win it for the country, the other players couldn't step up. अब वो सिचुएशन में अभी देखिए 5वां विकेट गिरा उस वर्ल्ड कप फाइनल में, आपने शटर डाउन कर दिया क्योंकि पीछे आपके सब साइकिल स्टैंड है। हाँ, so that is the question that we should really talking. पीछे कोई नहीं है, आपको आपके पास ऑलराउंडर्स ही नहीं है जो नीचे उस वे में परफॉर्म कर सकते हैं। So the conundrum is not around Virat and Rohit, but rather मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप उन दोनों को खिलाओगे तो 2 स्लॉट लॉक हो जाते हैं। उस जगह पे आपको 2 ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने का मौका मिलता है जो एक से ज्यादा चीज करते हैं फील्ड पे। My problem with the team think tank has been that there was a time when they tried Virat Kohli and Rohit Sharma open the innings, which is not a bad idea. That was the best thing they had actually done, which they should have. They have been trying and testing so many things. Why didn't they not extend that and bring that when they actually started playing this series? If maybe Virat Kohli and Rohit Sharma both open the innings together, they know their mindset is going to be whack the ball right from the first delivery is being bowled. Right. And if that actually turns out to be a better solution, and then you have an entire, I know that Jaiswal and players like Jaiswal, Gill, Gaikwad, they will then miss out in that opening spot. But the pressure will not be there on the lower order because they'll be playing that with much freedom. जो हम अभी बात कर रहे हैं कि
जैसे उनको कूदने दो, कहीं ना कहीं तैर वैर के कैसे भी हाथ पैर मार के उन लोग चला ही लेंगे ना खुद को, मतलब डूबेंगे नहीं। Right. वैसे ही रोहित शर्मा विराट कोहली को तुम ओपन करने दो, अगर वो दोनों का विकेट जाता भी है तुम नीचे वालों को तो वैसे भी वो फ्रीडम दे रहे हो खेलने के लिए। Right. और वो एक पॉसिबिलिटी है जो शायद उनको करना चाहिए था। And that won't, then we won't be able to say कि those spots lock हो गए with players who could probably give you something more than what Correct. these guys Correct. give you. I think that comes down to more of the middle order and the lower Yeah. middle order, where you have the selection dilemma for players like Shivam Dube हो गया, That's Hardik the Pandya. real selection dilemma. Would you agree, Chandresh sir? नहीं है, मतलब एज इन लाइक आई डोंट थिंक, मतलब अगर ये दोनों ओपन करते हैं Hmm. फिर आप, मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। तो Right. मिडिल ऑर्डर में Correct. That आपके, will keep on changing. तो 100%. मिडिल ऑर्डर में आपके पास सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, विकेट कीपर हो Right. जाएंगे। फिर आप जो है एक दो और ऑलराउंडर को खिला सकते हो, फिर तो आपका बैटिंग ऑर्डर भी लंबा हो जाएगा फिर मेरे हिसाब से। अभी उसमें क्या वो सिचुएशन में कि यशस्वी मिस कर जाएगा, Right. उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि तिलक वर्मा मिस कर जाए Hmm. 11 में, Hmm. और बट आई थिंक दैट विल बी अ बेटर Solution. than the others. Correct. But again, missing Yashasvi out, we also miss out on that left-right combination. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता In है। T20 actually it doesn't Doesn't matter. matter. Honestly, it doesn't matter. T20 क्रिकेट में मैं विकेट कीपर की बात तो कर रहा हूँ। Right. T20 क्रिकेट में विकेट कीपर कौन है जो हाथ में ग्लव्स हो पर दिमाग से काम करे, Correct. Right. 100%. उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एज नहीं आ रहा है, मतलब अगर एज जाने लगा मतलब पिच खराब है तो मैच ही नहीं आगे बढ़ेगा है कि बात तो सही है. Right. So that left-right combination, T20 you need players who can make 200 runs in 20 overs every time. Exactly. If you have a good squad that can actually, there was a time when Ravi Shastri said that we want to create a team that takes 20 wickets every time they are out on the field. T20 requires a squad that can give you more than 200 runs with every game that they play. That has been the reality right now. Right. It is a batting game. And 230, 240 have been scored over the last few years just for fun now. So again, if these are the scores that are being made and the other teams are actually trying to chase it and reaching close, so you know that you need a squad that can actually score 200 on any given day, irrespective of what the pitch is. Right. So then it doesn't matter कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या है, तुमको तुम्हारे बेस्ट प्लेयर्स चाहिए जो फर्स्ट बॉल से खेल रहे हो, अगर उनको लाइसेंस है, फ्रीडम है, अगर वो मार सकते हैं, तुम्हारे 6 ओवर में 100 रन पूरे हो जाने चाहिए. Right. सीएसके ने कर दिखाया था आईपीएल में जब सुरेश रैना ने वो खेला. सीएसके का अच्छा एग्जांपल दिया आपने। सीएसके इज द परफेक्ट T20 टीम। आपके सामने आपके पास लंबा बैटिंग ऑर्डर है, 7-8 बॉलिंग ऑप्शन है, उन्होंने आपको बताया कैसे खेले जाता है T20 format, and of course they won't do it in the IPL, of course. Right. That's it. Good discussion points. हाँ तो conclude करते हैं ना. Conclude करो. But how do we conclude? Do you guys want to say something? I think you are Good better to enough. conclude. So क्या मतलब? What is the conclusion? देयर इज नो कंक्लूजन, मतलब जो होना है वो होना है। We just wait and watch is something that you can say कि we'll all have to wait and watch of finally what is the squad looking onto the IPL. ऐसा करके conclude कर सकते हैं. That's it. Alright. Should I start? Alright, that was some conversation with Chandresh sir and Path sir. Although we had multiple opinions thrown onto the table, I think it is just a matter of time. Only time will tell, and the IPL probably will be a very big factor in deciding what team does India play into this T20 World Cup. But this has been a fabulous conversation. Thank you so much, Path sir. Thank you so much, Chandresh sir, for being here with us today. And we hope our viewers love this conversation and stay tuned with us for more.